Hello students, let's start English class. Today we will read chapter 13. The name of the chapter is Too Dear. Have you ever thought about the hardships faced by a prisoner? कभी आपने prisoner की लाइफ के बारे में सुना है कि वो उसने अपनी लाइफ किसी कैदी ने जिसको हम prisoner कहते हैं जिसने कुछ जुर्म किया हो क्रिमिनल हो उसकी लाइफ के बारे में आपने कभी सुना है? What do you think someone imprisoned for life cares for the most? Moral values, good food for the freedom to go home. The following story is a humorous account of the troubles of dealing with the criminal in the kingdom of Monaco. अब ये कहानी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, this is also related to one criminal who has faced these type of problems, and this is the story of the kingdom of Monaco. So let's start reading the story. Let's start reading the chapter. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Means in the France and Italy, there is a one kingdom called Monaco. ओके जो सागर के किनारे किंगडम बसा हुआ है उसको मोनाको कहते हैं. मैनी अ स्मॉल कंट्रीज टाउन कैन बूस्ट मोर inhabitants than this kingdom. For there are only about 7,000 of them in all. Means inhabitants means people who live in a particular place. There are only 7,000 inhabitants in this kingdom of Monaco. Okay, इनकी strength ही इतनी थी 7,000. And if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. अगर हम उनको divide करके दें तो for a single person के पास 1 एकड़ ज़मीन आएगी, 1 एकड़ भी नहीं आएगी. ओके, बट इन दिस टॉय किंगडम देयर आर रियल kinglet, and he has a palace. A kinglet means a humorous word for the king of a very small country, derived the same way as words like piglet, booklet, etc. Humorous word. This is a humorous word. Is a real मतलब kinglet means छोटी सी palace, छोटी सी जगह. And he has a palace and courtiers and ministers. अब there was one king who has a one small palace. His courtiers, ministers and a bishop. Bishop is जो उनका धर्म गुरु थे. एंड जनरल्स एंड एन आर्मी. उनके पास एक आर्मी भी थी. इट इज़ नॉट अ लार्ज आर्मी, ओनली 60 मैन इन ऑल, बट स्टिल इट इज़ एन आर्मी. in the kingdom of the army only 60 men were there, but still there is an army. There are also taxes in this kingdom as elsewhere. In this kingdom also their taxes will be given to the inhabitants. Now it happened a few years ago that a murder was committed in this toy king's domain. Here what happened, few years ago there was one murder was happened. ठीक है. अब डोमेन क्या है? लैंड रूल बाय अ किंग. इसमें एक बार मर्डर हो गया किसी का. द पीपल ऑफ दैट किंगडम आर peaceable and such a thing had not happened before. Peaceable means not causing violence. वहाँ के लोग violence create नहीं करते थे. The judges assembled. अब क्या हुआ कि judges assembled हुए, इकट्ठे हुए with much ceremony. Ceremony means formal behavior according to tradition, like a formal behavior. There and tried the case in the most judicial manner. उन्होंने एक judicial manner से इस केस को हैंडल किया. Connected with the court or a judge, with the connection of the court or a judge. There were judges and prosecutors and jurymen and barristers. यहाँ पे सब जैसे कोर्ट में होते हैं, all were there. They argued and judged, and last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. Means cut off his head, उसका सर काट दिया जाए. So good. Next they submitted the sentence to the king. The king read the sentence and confirmed it. The king also confirmed his जो भी उसको सजा दी गई. If the fellow must be execute him, killed as a
लीगल पनिशमेंट, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, ठीक है, मार दिया जाए. देयर वॉज ओनली वन हिच इन द मैटर. अब वन हिच मतलब एक चीज़ बची हुई थी. हिच मीन्स अब एक प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम दैट कॉजेज अ शॉर्ट डिले, जिस वजह से डिले हो सकता था. दैट वॉज दैट दे हैड नीदर अ गिलोटाइन अ मशीन यूज फॉर कटिंग पीपल्स हेड ऑफ. अब उनके पास कोई मशीन नहीं थी जो उनकी जो उन्होंने सजा दी थी हेड को काटने वाली, जो कट सके. नॉर एन एग्जीक्यूशनर, वहाँ पे कोई एग्जीक्यूशनर भी नहीं था. ऑफिशियल हु एग्जीक्यूट्स कन्विक्ट्स, जो एग्जीक्यूट कर सके इस पूरे काम को. द मिनिस्टर कंसिडर्ड द मैटर एंड डिसाइडेड टू एड्रेस एन इंक्वायरी टू द फ्रेंच गवर्नमेंट. द मिनिस्टर कंसिडर्ड, मिनिस्टर ने क्या किया, दे हैव शिफ्टेड this inquiry to the French government, asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's hand. मीन्स फ्रेंच वाले अब लैंड दें मतलब उनको दे देंगे मशीन, और दे विल देयर एक्सपर्ट विल कट ऑफ द क्रिमिनल्स हेड. एंड इफ़ सो वुड द फ्रेंच काइंडली इन्फॉर्म दैम what the cost would be, या तो वो कॉस्ट बता दे. द लेटर वॉज सेंट. अ वीक लेटर द रिप्लाई केम, अ मशीन एंड एक्सपर्ट कुड बी सप्लाइड. अब मशीन और एक्सपर्ट तुम्हें दिए जाएंगे. एंड द कॉस्ट वुड बी 16,000 फ्रांस. अब उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 16,000 फ्रांस. दिस वॉज लेड before the king. He thought it over. 16,000 francs. The rich is not worth the money. ठीक है, रिच क्या होता है, रिच एंड ईवल, अनप्लीजेंट पर्सन. वो 16,000 के इसकी कीमत हो गई. नॉट वर्थ द मनी, सेड ही. कांट इट बी डन सम हाउ चीपर. ठीक है, कि कांट इट बी डन, ये ऐसा नहीं हो सकता. वाई 16,000 फ्रांस इज़ मोर देन 2 फ्रांस अ हेड on the whole population. अब why 16,000 फ्रांस इज़ मोर देन 2 फ्रांस, वो 2 फ्रांस से ज़्यादा, मतलब 16,000 बहुत ज़्यादा है. फ्रांस इज़ मोर देन 2 फ्रांस हेड ऑन द होल पॉपुलेशन, और पूरे होल पॉपुलेशन 2 फ्रांस ही बहुत है, और 16,000 पर फ्रांस वो मांग रहे हैं. द पीपल वॉन्ट स्टैंड इट एंड इट मे कॉज अ रियॉट. ठीक है, अब वो वहाँ मतलब उन्होंने सोचा अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. सो अ काउंसिल वॉज कॉल्ड टू कंसिडर वट कुड बी डन. अब काउंसिल ने सोचा कि अब क्या होगा. एंड इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड अ सिमिलर इंक्वायरी टू द किंग ऑफ इटली. नाउ दे सेंड दिस इंक्वायरी टू द इटली. पहले दे हैव सेंड दिस दैट इंक्वायरी टू द फ्रेंच, एंड नाउ दे हैव सेंड it to the Italy. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and expert, and the whole cost would be 12,000 francs. अब इन्होंने 12,000 francs cost रखी, including travelling expenses. This was cheaper but still is seemed too much. अब now also this was cheaper than 16,000 but it is also too much. ये चलो उससे कम था but फिर भी वो costly था. It would still mean nearly 2 francs more per head on the taxes. ठीक है. Another council was called. They discussed and considered how it could be done with less expenses. कैसे कम expenses पे हो सकता है. Could not one of the soldiers perhaps he go to do it in a rough and homely fashion. The general was called and was asked, can't you find us a soldier who could cut the man's head. क्या तुम मेरे लिए एक सोल्जर नहीं फाइंड आउट कर सकते जो इसका मैन का हेड कट कर सके. इन वॉर दे डोंट माइंड किलिंग पीपल. वो वॉर्स में वो किल ही करते हैं लोगों को. ठीक है, सोल्जर को ले आओ जो कि सोल्जर्स ऐसे काम करते हैं. इन फैक्ट दैट इज़ वॉट दे आर ट्रेंड फॉर. सो द जनरल टॉक्ड इट ओवर विद द सोल्जर्स टू सी वेदर वन ऑफ देम वुड नॉट अंडरटेक द जॉब. अब उन्होंने सोचा कि चलो अब हम सोल्जर्स से पूछते हैं और टॉक इट ओवर विद द सोल्जर्स टू सी वेदर वन ऑफ देम वुड नॉट अंडरटेक द जॉब. बट नन ऑफ द सोल्जर्स वुड डू इट. कोई भी सोल्जर करने के लिए तैयार नहीं हुआ. नो दे सेड, वी डोंट नो हाउ टू डू इट. इट इज़ नॉट अ थिंग वी हैव बीन टॉट. ये गला जो इसका सिर काटना हमें नहीं सिखाया गया कि हेड कट ऑफ कैसे किया जाता है. वॉट वॉज टू बी डन. अगेन द मिनिस्टर कंसिडर. अब आगे क्या करें. अगेन द मिनिस्टर कंसिडर एंड reconsidered. They assemble a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of imprisoned for life.
मीन्स अब उसको अब उन्होंने सोचा, सबमिट कमेटी बैठी, सब कमेटी बैठी. एट लास्ट दे डिसाइडेड बेस्ट थिंग वुड बी लेटर द अल्टर द डेथ सेंटेंस. उसको डेथ सेंटेंस को हम छोड़ करके अल्टर कर दें उसे, उसकी टू वन ऑफ द इम्प्रिजन फॉर लाइफ. दिस वुड इनेबल द किंग टू शो हीज मर्सी एंड इट वुड कम चीपर. वो उनकी मर्सी, उनकी दया नहीं होगी उसके ऊपर, वो एक चीपर लगेगा कि उनके पास दे डिडंट हैव द मनी एंड दे हैव डन दिस. The king agreed to this, and so the matter was arranged. Matter was arranged. The only hitch now was that there was no suitable prison for a man sentenced for life. There was a small lockup where people were sometimes kept temporary. वहाँ पे एक small lockup था जहाँ पे लोगों को temporary रखा जाता था. But there was no strong prison fit for permanent use. There is no means not for the permanent purpose we have they have kept over there. कोई किसी भी prison को permanent नहीं रखते थे. However, they managed to find a place that would do, and they put the young fellow there and placed a guard over him. उन्होंने they have found that place, ऐसा place ढूंढा जहाँ पे इस गार्ड को रख सकें. The guard had to watch the criminal and had also to fetch his food from the palace kitchen. मतलब अब वो उसको गार्ड वहाँ पे हम रखें और उसके बाद उसको हम गार्ड को वहाँ पे रखें और वो गार्ड उसकी देखभाल करे और वो पैलेस के किचन से फूड लाकर उसको टाइमली प्रोवाइड करे. The prisoner remained there month after month, till a year had passed. But when a year had passed, the kinglet, looking over the account of his income and expenditure one day, noticed a new item of expenditure. This was for the keep of the criminal, nor was it a small item either. There was a special guard, and there was also the man's food. It came to more than 600 francs a year. For keeping this prisoner, months were passed away, and after that, the expenditure counted by the king was on the criminal is 600 francs a year. मीन्स उसके रहने का और खाने का खर्चा देखा जाए तो, और गार्ड का खर्चा देखा जाए तो 600 फ्रांस a year है. एंड द वर्स ऑफ इट वॉज दैट द फेलो वॉज स्टिल यंग. उससे वर्स चीज़ क्या थी, तो जो फेलो था वो और यंग होता जा रहा था. मीन्स वॉज यंग एंड हेल्दी एंड माइट लीव फॉर 50 years. ऐसा लग रहा था जैसे 50 years और जिएगा. व्हेन वन केम टू रेकॉन इट अप, द मैटर वॉज सीरियस. रेकॉन, कैलकुलेट एन अमाउंट. अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो द मैटर वॉज सीरियस, वो सीरियस हो गया. इट वुड नेवर डू. सो द किंग समॉन्ड हिम, ऑर्डर्ड समवन टू अपीयर हीज मिनिस्टर एंड सेड टू देम. उसने, किंग ने ऑर्डर किया अपने मिनिस्टर को एंड बोला, यू मस्ट फाइंड सम चीपर वे ऑफ डीलिंग विद हीज दिस रास्कल. मीन्स इसको डील करने के लिए कोई चीपर वे ढूंढो, नहीं तो हमारा तो खजाना ही खाली हो जाएगा. द प्रेजेंट प्लान इज़ टू एक्सपेंसिव. जो प्रेजेंट प्लान है वो बहुत एक्सपेंसिव है. द मिनिस्टर मैट एंड कंसिडर्ड एंड reconsidered till one of them said, gentlemen, in my opinion we must dismiss the guard. The gentleman कहता है कि in my opinion we can dismiss the guard. उसके गार्ड को वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए. but then rejoin another minister, the fellow will run away. अगर हम गार्ड हटा दिया तो वो फेलो भाग जाएगा वहाँ से. well said the first speaker. let him run away. जाने दो उसे, भाग जाने दो. So they reported the result of their deliberation to the kinglet and he agreed with them. तो उसने क्या किया, वो उससे उन्होंने डेलीबरेट अपने रिज़ल्ट को उसने एग्री किया और फिर सब उसके साथ एग्री हो गए. द गार्ड वॉज डिसमिस्ड एंड दे वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन. द गार्ड वॉज डिसमिस. अब गार्ड को डिसमिस कर दिया गया एंड दे वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन. अब देखते हैं क्या होगा. ऑल दैट हैपन वॉज दैट एट डिनर टाइम द क्रिमिनल केम आउट. अब डिनर टाइम में अब क्या हुआ, क्रिमिनल वापस आ गया एंड केम आउट
and not finding his guard, he went to the king's kitchen to fetch his own dinner. अब वो किंग के किचन में ही चला गया अपना डिनर लेने के लिए. He took what was given to him, returned to the prison, shut the door on himself and stayed inside. उसको शट कर मतलब डोर को बंद कर दो इसके ऊपर और अंदर आ जाओ. नेक्स्ट डे द समथिंग ऑकर्ड. ही वेंट फॉर हिज फूड एट द प्रॉपर टाइम, बट एज फॉर रनिंग अवे ही डिड नॉट शो द लीस्ट साइन ऑफ इट. what was to be done? They considered the matter again. मीन्स अब वो उन्होंने सोचा कि वो भाग जाएगा. दैट ऑल्सो वो भागा भी नहीं. ही केम आउट एट द टाइम ऑफ डिनर. अब क्या करें? दे कंसिडर द मैटर अगेन. वी शैल हैव टू टेल हिम स्ट्रेट आउट. हमें से डायरेक्ट कह देना चाहिए. एंड said they that we do not want to keep him. हम तुम्हें नहीं रख सकते. So the minister of justice had him brought before him. Why do you not run away? said the minister. अब बोलता है तुम यहाँ से भाग के क्यों नहीं चले जाते हो? ना मिनिस्टर कहते हैं देर इज़ नो गार्ड टू कीप यू. तुम्हें अब गार्ड देखने वाला नहीं है कि तुम भाग के जाओगे कि नहीं जाओगे. यू कैन गो वेयर यू लाइक एंड द किंग विल नॉट माइंड. तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ. किंग माइंड नहीं करेंगे. और डेयर से द किंग वुड नॉट माइंड, replied the man. But I have now nowhere to go. मेरे पास कोई जगह नहीं है. कहाँ जाऊँ? What can I do? You have ruined my character by your sentence, and people will turn their backs on me. Besides, I have got out of the way of working. You have treated me badly. It is not fair. In the first place, when once you sentenced me to death, you ought to have executed me, but you did not do it. तो मुझे लगा कि तुम मुझे मार दोगे और बट आप तुम लोगों ने नहीं किया. दैट इज़ वन थिंग आई डिड नॉट कंप्लेन अबाउट दैट. मैंने आपको इस चीज़ की कंप्लेन नहीं की. देन यू सेंटेंस्ड मी टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. आप मुझे उसके बाद आपने सज़ा दी कि मुझे पूरा आजीवन कारावास में डाल दिया जाए, मिस जेल में डाल दिया जाए. Put a guard to bring me my food, but after a time you took him away again. I had to fetch my own food. अब मैं फिर अपना फूड अपने आप लाने लगा. आपने उस गार्ड को हटा दिया. Again I did not complain. फिर मैंने आपको कोई कंप्लेन नहीं की. But now you actually want me to go away. अब तुम चाह रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ. I can't agree to that. अब मैं यह नहीं कर सकता. You may do as you like, but I won't go away. तुम जो करना चाहते हो करो, but I won't go away. मैं नहीं जाऊँगा. I will not go. What was to be done? Once more the council was summoned. एक बार और फिर काउंसिल बैठी. What course could they adopt? अब क्या अडॉप्ट करें हम? The man would not go. Finally they decided to offer him a pension. अब उन्होंने सोचा कि इसको हम पेंशन दे दें. The sum fixed was 600 francs, and this was announced to the prisoner. Well, said he, I don't mind, so long as you undertake to pay it regularly. On that condition, I am willing to go. अगर तुम मुझे इतना regularly pay करोगे तो I am willing to go. So the matter was settled. He received 1/3 of his iniquity in advance and left the king's dominance. Means iniquity means here the iniquity, a fixed amount of money paid to somebody every year. ठीक है, fixed amount. And dominions means area controlled by a ruler. ठीक है, एनिमिटी इन एडवांस एंड लेफ्ट द किंग्स डोमिनियंस मीन्स जो किंग का एरिया था उसको उसने लेफ्ट कर दिया. इट वॉज ओनली a quarter of an hour बाय रेल एंड ही इमिग्रेटेड. अब क्या हुआ? इमिग्रेटेड मीन्स हेयर द इमिग्रेटेड लेफ्ट वंस कंट्री टू गो एंड लीव इन अनदर कंट्री परमानेंटली. अब वो वहाँ से इमिग्रेट हो गया और दूसरी कंट्री में सेटल जस्ट अक्रॉस द फ्रंटियर. अब वो उसके फ्रंटियर में ही रहने लग गया. फ्रंटियर मीन्स अ बॉर्डर बिटवीन टू कंट्री. उसके बॉर्डर में रहने लग गया. वेयर ही बॉट अ बिट ऑफ लैंड, स्टार्टेड मार्केट गार्डनिंग. अब उसने एक लैंड लिया वहाँ छोटा सा एंड स्टार्टेड मार्केट गार्डनिंग एंड नाउ लीव्स कंफर्टेबली. अब वो कंफर्टेबल लाइफ जीने लगा. ही ऑलवेज गोज एट द प्रॉपर टाइम टू ड्रॉ हीज पेंशन. अब प्रॉपर टाइम पे अपनी पेंशन लेने चला गया. आफ्टर 1 year they will pay the king will pay him the pension 600 francs. It is good
It is good thing that he did not commit his crime in a country where they do not grudge expense to cut a man's head off or to keeping him in prison for life. उसने अपने थैंक किया कि शुक्र है कि मैं ऐसे देश में मैंने क्राइम नहीं किया जहाँ पर लोग हेड कट कर देते, ठीक है, और कोई एक्सपेंसेस ना देते। शुक्र है मैंने ऐसे देश में क्राइम किया जिन्होंने मेरे को हेड कट करने की सज़ा भी दी और उसके उसके फिर मेरे को एक्सपेंसेस भी दिए, ठीक है। हेड कट नहीं कर पाए तो उसके लिए फिर मुझे पेंशन भी दी उन्होंने। तो थैंक करता हूँ कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी बीती कि ऐसे देश के लिए जिन्होंने मुझे पेंशन भी दी, क्राइम करने की पेंशन भी दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज हमारा